આદરણીય શ્રોતાજનોને મારા નમસ્કાર. આજે આ તુલસી ખુશરો સાહિત્ય મંચ ઉપરથી મને વ્યાખ્યાન આપવાની તક એને માટે હું ખૂબ 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 આનંદ અનુભવું છું. એનું કારણ ખાસ તો એ છે, આ ગ્રુપ સાથે, આ મંચ સાથે જોડાયેલી બે મહાન વિભૂતિઓના નામ ગોસ્વામી તુલસીદાસજી અને આમિર ખુશરોજી. આ બંને એવી વિભૂતિઓ છે, વિશ્વવિખ્યાત તો છે જ, એવી વિભૂતિઓ કે જેમના સ્મરણ માત્રથી આપણું શીશ આદરથી ઝૂકી જાય અને સાથે એ યાદ કરીએ કે આ બંને વિભૂતિઓ ભારતમાં જન્મેલી છે, એટલે આપણું મસ્તક ગૌરવથી ઊંચું પણ થઈ જાય. સૌથી પહેલા ગોસ્વામી શ્રી તુલસીદાસજીના ચરણોમાં વંદન કરું છું. રામાનંદ વૈષ્ણવ હિન્દુ સંત શ્રી તુલસીદાસ એમના જીવન અને એમની લેખીની એવી હતી કે એમના જીવન સાથે ઘણી બધી કથાઓ જોડાઈ ગઈ છે. એક કથા એવી પણ છે કે તુલસીદાસજી 12 મહિના સુધી માતાના ગર્ભમાં રહ્યા હતા. એ જન્મ્યા ત્યારે એમના મોઢામાં પૂરેપૂરા 32 દાંત હતા અને જન્મીને એમનું વર્તન 5 વર્ષના બાળક જેવું એકદમ મેચ્યોર હતું. એવી પણ વાત છે કે બીજા બાળકો જેમ જન્મીને રડે એવી રીતે રડવાને બદલે તુલસીદાસજી પહેલા રામ નામનું ઉચ્ચારણ કર્યું અને એટલે જ એમના નવદાસના કહેવા પ્રમાણે તો શ્રી તુલસીદાસજી વાલ્મીકીના અવતાર જ હતા. જોકે ભવિષ્યોત્તર નામનો ગ્રંથ છે, એમાં શિવ પાર્વતીનો સંવાદ મૂકવામાં આવ્યો છે અને એ સંવાદમાં શિવજી પણ કે રામ નામનો મહિમા ગાવા માટે વાલ્મીકી કલિયુગમાં ફરી એકવાર અવતાર લેવાના છે. એ સ્તોત્ર છે વાલ્મીકી તુલસીદાસ રામચંદ્ર કથાયેતામ ભાષા બદ્ધામ કરિષ્યતિ. એટલે એ માન્યતા પ્રમાણે તુલસીદાસજી શ્રી વાલ્મીકીજીનો અવતાર છે. તુલસીદાસજીની ઘણી બધી રચનાઓ, ઘણા બધા ગ્રંથો એમણે પાર્વતી મંગલ, જાનકી મંગલ, હનુમાન બાહુ, વિનય પત્રિકા, ગીતાંજલિ, કૃષ્ણ વગેરે ઘણા બધા ગ્રંથો લખ્યા છે, પણ આપણે એમના રામચરિત માનસથી સૌથી વધુ પરિચિત છીએ. એમને સંસ્કૃતનું જ્ઞાન પણ એટલું જ હતું, પણ રામાયણની કથાને બનાવવા માટે એમણે લોકભાગ્ય ભાષામાં રામચરિત માનસની રચના કરી. અત્યારે ભાગ્યે જ કોઈ એવું ઘર હશે હિન્દુનું કે જેમના મંદિરના કબાટમાં રામચરિત માનસ ન બિરાજમાન હોય. અને એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે વાલ્મીકીજી હનુમાનજીનો અવતાર હતા, કારણ કે હનુમાન કથા ફેલાવવા માટે વાલ્મીકીનો અવતાર લઈ અને રામાયણની રચના કરી હતી. એટલે એ રીતે જોઈએ તો હનુમાનજી, વાલ્મીકીજી, તુલસીદાસજી એટલે જ્ઞાન ગુણ સાગર તીનો લોક ઉજાગર એ લક્ષણ તુલસીદાસજીમાં પણ હોય જ. એ તુલસીદાસજીના ચરણોમાં સૌથી પહેલા વંદન કરું છું. આ ગ્રુપ મને એટલા માટે પણ ગમે છે કે એનું ફર્સ્ટ પેજ ઓપન કરીએ તો સૌથી પહેલા આ બંનેના દર્શન થાય છે. બીજા, જ્યારે તુલસીદાસજી રાજા રામના સાથે જોડાયેલા હતા ત્યારે શ્રી આમિર ખુશરો દિલ્હીના અલાઉદ્દીન ખિલજીથી માંડીને 7 બાદશાહો સાથે જોડાયેલા હતા. 7 સલ્તનત સુધી એ રાજકવિ તરીકે રહેલા હતા. 7 બાદશાહો સાથે એમના નામ જોડાયેલા છે. બહુ મોટા કવિ, તત્વજ્ઞાની અને ભાષાઓના વિદ્વાન એવા શ્રી આમિર ખુશરોજી સંગીતને આપેલું યોગદાન તો એવું છે કે 13મી સદીથી તે અત્યાર સુધી સંગીત જ્યાં જોડાયેલું છે ત્યાં આમિર ખુશરોજીનું નામ જોડાયેલું જ છે અને સંગીત ત્યાં સુધી આમિર ખુશરોજીનું નામ જીવવાનું છે. પ્રથમ ઉર્દુ કવિ
કવ્વાલીના જનક શ્રી આમિર ખુશરોને ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતમાં ખ્યાલની શરૂઆત કરવાની યશ કરી. એમણે ધ્રુપદમાં સુધારા કરીને એમાં પર્શિયન મેલેડીઝ ઉમેરી, તાલ ઉમેર્યા અને ખ્યાલની રચના કરી. આ ખ્યાલ કવ્વાલીમાં તો બહુ ઉભર્યો છે, આપણે બધા જ જાણીએ છીએ, પણ સાથે સાથે એમણે તો ભજનોમાં પણ એનો ઉગાર્યો છે, એનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. પર્શિયન, હિન્દી અને ઉર્દુમાં રચના કરનાર આમિર ખુશરોજી અરેબિકમાં પણ એટલા જ પારંગત હતા. હિન્દુસ્તાની શાસ્ત્રીયમાં આજે પણ એમની રચનાઓની બંદિશથી શરૂઆત થાય છે, એમને જ યાદ કરાય છે અને ગઝલકારો એમની ગઝલો ગાતા ગૌરવ અનુભવે છે. સૌથી મોટું શ્રેય એમને છે ભારતીય તબલાના શોધક તરીકે. જો આમિર ખુશરોજી ન હોય, સાહિત્ય અને સંગીતનું જોડાણ ન હોય, તો ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીત કદાચ અધૂરું જ રહ્યું. આ બંને મહાન વિભૂતિઓ સાથે જોડાયેલો આ મંચ છે, એને શરૂ કરનાર, એના સ્થાપક, એના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને એની સાથે જોડાયેલ બધી જ આયોજનવાળી વ્યક્તિઓને ખૂબ ખૂબ સાદરપૂર્વક સેલ્યુટ કરું છું. સાહિત્ય અને સંગીત સાથે જોડાયેલ આ મંચ, એના ઉપર મને કહેવામાં આવ્યું છે મારો થોડોક પરિચય આપવાનો. પણ ખરેખર કહું, જેની આ લોકો જેની સાથે જોડાયેલા છે ને એ વિભૂતિઓને યાદ કરું ત્યારે મને પુષ્પદંતે કહ્યું હતું ને, મહિમ્ન સ્તોત્રની શરૂઆતમાં, મહિમ્ન પારંતે પરમ વિદુષો યદ્વ સદશી સુધીર બ્રહ્માદિનામ મને કંઈક પુષ્પદંત જેવો જ સંકોચ થઈ રહ્યો છે. પણ મને જે કહેવામાં આવ્યું છે એને માન આપીને હું મારો થોડોક પરિચય અહીંયા આપીશ. હું ગિરિમા હાર્દિક ગાયક. નાનપણથી જ વાંચવાનો જે શોખ હતો એ આજ સુધી રહ્યો છે. MA કરતી હતી ત્યારે પહેલી વાર્તાઓ લખાઈ હતી અને એ વખતના બહુ જ પ્રતિષ્ઠિત ચાંદની અને આરામ જેવા વાર્તા સામયિકોમાં પ્રકાશિત થતી હતી. એ પછી લગ્ન થયા, લગ્ન કરીને મસ્કત ગઈ અને ત્યાં વાર્તા લેખનને બિલકુલ તિજોરીમાં મૂકી દેવું પડ્યું. બીજી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરી, પણ વાર્તા લેખન તો જ્યારે ભારત પાછી આવી ત્યારે જ શરૂ થયું. તિજોરી ખુલી, મનની અને હૃદયની તિજોરી પણ ખુલી અને વાર્તાઓ બહાર આવવા માંડી. 2015માં વાર્તાઓ પ્રકાશિત થવા માંડી. ત્યારથી ગુજરાતી ભાષાના લગભગ બધા જ પ્રતિષ્ઠિત સામયિકોમાં વાર્તાઓ પ્રકાશિત થઈ રહી છે. આ ઉપરાંત ગદ્યના બીજા સ્વરૂપોમાં પણ કામ કરવું ગમે છે, જેમ કે લઘુકથા લખું છું, વ્યક્તિ ચરિત્રો લખું છું, બાળ વાર્તાઓ લખું છું અને મને આનંદ છે કે મારા પહેલા જ 3 પુસ્તકોને ગુજરાત સાહિત્ય એકેડેમીના 3 પુરસ્કાર મળ્યા છે. એ સિવાય પણ સુરત નર્મદ સાહિત્ય સભાનો ડૉક્ટર ફેની રતન માર્શલ ચંદ્રક મેળવવા માટેનું સૌભાગ્ય પણ મળ્યું છે. અને એ સિવાય વાર્તા લેખન અને બીજા લેખન માટે શ્રી કેતન મુનશી, સ્મિતા પારેખ, ચિત્રલેખા એવી વિવિધ સંસ્થાઓના લગભગ 16 જેટલા પારિતોષિકો મળ્યા છે. ને આ પારિતોષિકો મને લખવામાં પ્રોત્સાહન આપે છે, લખવાનું બળ પૂરું પાડે છે. મારી અમુક વાર્તાઓના મરાઠી અને હિન્દીમાં અનુવાદ પણ થયા છે અને મરાઠી અને હિન્દી અનુવાદ જે તે ભાષાના સામયિકોમાં પ્રકાશિત પણ થયા છે. હમણાં જ વિશ્વગાથા સામયિકમાં, હિન્દી સામયિક છે, એમાં મારી બાણશૈયા વાર્તા પ્રકાશિત થઈ હતી અને હું જોઈ શકું છું કે ઘણા બધા હિન્દી ભાષી શ્રોતાઓ પણ જોડાયેલા છે. એટલે હું મારી વાર્તાઓ આજે હિન્દીમાં વાંચવાની છું. પહેલા બાણશૈયા વાર્તાથી શરૂઆત કરીશ, જેનો મરાઠી અને હિન્દી બંનેમાં અનુવાદ થયો હતો અને હમણાં વિશ્વગાથા સામયિકમાં પ્રકાશિત થઈ છે.
આનો અનુવાદ કર્યો છે શ્રી रजनीकांत शाह। अरे ओ लड़की, यहाँ क्यों आई हो? चल भाग भाग यहाँ से। मैं तो दरवाजे पर ही झड़वत। मम्मा ने जिसके घर जाकर मिलने के लिए खास सिफारिश की थी, वह उसकी बचपन की अंतरंग सहेली के घर मैंने ऐसे स्वागत की तो अपेक्षा ही नहीं की थी। मम्मा ने कहा था कि वह सहेली उनकी मम्मी के साथ रहती है, तो फिर यह दरवाजे के पीछे खड़ी एक जर्जरी सौंदर्य मूर्ति को मैंने देखा। उनको देखकर मुझे लगा कि लेडी डायना जिंदा होती तो जिंदगी के 8 दशक के बाद ऐसे ही दिखती, पर ऐसे व्यक्तित्व के साथ बोले गए शब्दों का मेल नहीं जम रहा था। वह शाब्दिक प्रहार और प्रबल हुआ। सुन नहीं रही? चल, मैं कह रही हूँ चली जा, भाग यहाँ से। और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, नीलू देख तो, यह कोई लड़की घर में घुसी जा रही है। नीलू नाम सुनते ही मेरी जान में जान, मैं गलत घर में तो हूँ। मम्मा से उनकी सहेली इस नीलू की तो कितनी बातें सुनी। इतने में अंदर नैपकिन से हाथ पहुंचती हुई मेरी तारणहार नीलू। क्या हुआ मम्मी? दरकार और प्रेम रस से सजे शब्द उस मोहक व्यक्तित्व में से बाहर आए। उन्होंने मुझे देखा। अवनी, अवनी हो ना तुम? से तुम्हारा फोन आया तब से मैं रास्ता देख ही रही थी। अंदर आ जाओ, बैठो बेटा। नीलू आंटी की आवाज में एक मीठा सत्कार था। उस सत्कार का हाथ पकड़कर मैं अंदर जाकर नीलू कौन है यह? निकाल बाहर उसे। What's wrong with this old woman? मेरे ज्ञान को बुलाया। माँ, वह मेरी सहेली थी ना भारती, हमारे बगल में रहती थी। यह उसकी बेटी है, अवनी, डॉक्टर है। कितनी मेहनत के बाद उनको भारती की याद तो आई, लेकिन उसकी बेटी? जाओ जाओ। भारती तो अभी इतनी सी थी ना। उन्होंने कमर तक हाथ ले जाकर भारती की हाइट दिखाई। उसकी लड़की, और यह भी इतनी बड़ी। नीलू आंटी ने आखिरकार उस वृद्ध बालिका के समक्ष उनके हाथ की स्वीकार की और बात को बदल दिया। मम्मी आओ, आपका दूध लेने का वक्त हुआ। और अभी नया नया चलना सीखे हुए बालक को माँ हाथ पकड़कर चलाए, उसी प्रकार हाथ पकड़कर उनकी मम्मी को वो अंदर ले गई। मुझे हाथ से 5 मिनट का संकेत दिया। कुछ देर तक अंदर से नीलू आंटी उनकी मम्मी को समझा कर दूध पिला रही हो ऐसी आवाज सुना देती है। प्रोत्साहन तो ऐसा लगे जैसे धीरज के ग्लास में भरे हुए प्रेम का पान करा रही है। यह सुनते हुए मैं अपना डॉक्टरी ज्ञान खो देती। इस रोग का नाम क्या है? थोड़ी देर बाद आंटी बाहर आई। सॉरी अनु बेटा। उन्होंने 5 ही मिनट में अवनी से अनु बेटा बनाकर मुझे अपना बना लिया। अपनत्व के वातावरण में ही उन्होंने बात की शुरुआत की। मम्मी सब भूल जाती है, भूतकाल में ही जीती है, और अनजान लोगों को तो जरा भी बर्दाश्त नहीं। मेरे बड़े भैया कभी कभी आते हैं तब उनको भी बड़ी मुश्किल से पहचान पाती है। इसलिए तुम अन्यथा नाना आंटी, मुझे नानी माँ को लेकर जरा भी बुरा नहीं लगा। मुझसे सहज भाव नानी माँ कह दिया गया। उनको देखकर किसी को भी अपनी अति प्रिय बुजुर्ग स्वजन ऐसी महिला की याद आ ही जाए।
आई एम नॉट रॉन्ग, शी हैज डिमेंशिया आंटी। मैंने अपने डॉक्टरी ज्ञान के अनुसार लक्षणों पर से अंततः इस कर लिया। डिमेंशिया बड़ी उम्र में होने वाली असाध्य बीमारी। अनेक डॉक्टरों को दिखाया पर इसका कोई इलाज नहीं। उपरांत थोड़ा जेनेटिक भी है। मैंने ऐसे केस देखे हैं आंटी, आप चिंता मत करो। मैंने उन्हें व्यर्थ आश्वासन दिया। चल छोड़ यह सब। तुम कैसे मुंबई छोड़कर यहाँ सूरत आ गई? एमबीबीएस कर लेने के बाद सूरत के एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में मैंने नौकरी ली। तब मेरी मम्मा ने भी ऐसा ही सवाल किया और कहा भी था, इतने वर्ष तो तुम हॉस्टल में रही हो, कुछ समय इंतजार करोगी तो यहाँ मुंबई में भी किसी अच्छे बड़े अस्पताल में नौकरी लग जाएगी। हमारे साथ तो कुछ वक्त रह लो, शादी के बाद तो तुम वैसे भी दूर चली जाओगी। तो घर में रहने का मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था, लेकिन वहां रोज एक ही माथापच्ची होती थी। मम्मी हर तीसरे दिन किसी न किसी लड़के के रिश्ते की बात करती और साथ ही साथ थोड़ा बहुत प्रेशर भी जुड़ ही जाता था। मेरे दिमाग पर तो अभी ताजा ताजा प्राप्त गोल चमक सवार थी। मुझे अभी तो पीजी करना था, स्पेशलाइजेशन करना था, रिसर्च करना था और मुझे अपना करियर भी बनाना था। हकीकत में तो मुझे शादी नहीं करनी। मेरी कई सहेलियों को शादी के बाद करियर को या बच्चों के स्कूल बैग में गुम हुए देखा था और मुझे ऐसा नहीं। पर यदि मैं यह सब मम्मी को बताऊं तो मुश्किल हो जाए। इसलिए फिलहाल तो मैंने नीलू आंटी को जो जवाब दिया वो ही जवाब मम्मा को दे दिया। सबसे पहले जो नौकरी मिल जाए वह कर लेनी। एक्सपीरियंस तो मिलने लगेगा। हमारी लाइन में खाली बैठे रहना पुसाए नहीं। तुम्हारी बात तो सही है नीलू, यहाँ तुम्हारा अस्पताल बहुत फेमस है, तुम्हें अच्छा लगे। और तुम तो इतने वर्ष हॉस्टल में रहकर पढ़ी हो, अतः यहाँ भी हॉस्टल में सब रास आ गया होगा और तुम इस घर को अपना ही घर समझो। तो ज्यादातर सो ही रहती है, उसे तो दिन रात का भी अब पता नहीं चलता। और धीरे धीरे तुम दोनों एक दूसरे की आदत में शामिल हो जाओ। फिर मम्मा तुम्हें देख जाएगी नहीं। और मुझे इतना तो अच्छे से मालूम है कि मेरे साथ तो तुम्हारी अच्छी जमेगी ही। आंटी की आंखों में और शब्दों में आत्मीयता। नीलू आंटी के साथ अनुकूल आ जाए ऐसा ही था। उम्र तो होगी लगभग 50 की, पर उनके कुंवारे शरीर में मम्मी की ओर से प्राप्त सौंदर्य की विरासत अच्छे से संभली हुई। यह यंग हार्ट इन अ यंग लुकिंग बॉडी और बातों में कहीं भी बुजुर्गियत नहीं। मेरे जैसी होकर मेरे साथ मेरी रुचि की बातें करती। बातों के प्रवाह में उम्र का फर्क तो पता ही नहीं कहाँ बह गया। जैसे जैसे मेरी मुलाकातें बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी समझ में आता गया कि यंग एट हार्ट लगने वाली आंटी के विचार हकीकत में कितने परिपक्व थे। उनके पूर्ण पल्लवित गुलाब जैसे मन की एक के बाद एक पंखुड़ियां उठती गई और मैं उनकी महक नीची चली गई। एक दिन तो काफी समय से फूल बुलाने वाला और कुछ मुझ पर भी लागू प्रश्न मुझसे पूछा लिया। आंटी, आप अभी इतनी सुंदर दिखती है, तो जवानी में तो लाइन लगी होगी, क्यों नहीं की? कोई खास वजह? अनु, हम 4 भाई बहन। सबसे बड़े भैया तो बरसों पूर्व एक बंगाली लड़की से शादी करके विदेश चले गए। तब व्हाट्सएप, स्काइप, टेलीफोन की इतनी सुविधाएं नहीं थी। भौगोलिक दूरी ने कब मन की दूरियां बढ़ा ली पता ही नहीं। अब तो वह कोलकाता में है
और बहुत बड़ी कंपनी के बहुत बड़े ओहदे पर, इसलिए उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती। सही बात है, इसलिए नहीं आ पाते होंगे। मैं भी तो इतने समय से आती जाती रही हूँ, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। उनके बाद मीता बहन, उनका घर तो थोड़ी दूरी पर ही है। तुम उन्हें यहाँ मेरे घर पे एक बार मिली हो। एक रविवार को नानी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आई थी, वो ही ना? हाँ वही। हाथ में कुछ दवाइयाँ लिए बड़ी टोयोटा गाड़ी लेकर आई हुई मीता आंटी मेरी नजर समक्ष आई। नीलू आंटी के हाथ में दवाइयाँ और बिल रखकर उनकी मम्मी के पास 5-10 मिनट के लिए बैठी, कुछ बातें की थी। भारती की लड़की के रूप में मेरा परिचय होने के बाद उन्होंने मुझे उनके घर जाने के लिए औपचारिक आमंत्रण भी दिया। बाद में नीलू आंटी द्वारा दिए गए पैसे लेकर, चल मुझे देर हो रही है, बाद में फिर कभी आऊंगी कहकर चली गई। और चौथा कौन? मीता बहन से छोटी एक और बहन थी, क्षमा। थी, हाँ थी। क्षमा का दिमाग शरीर की गति से अनुरूप नहीं चल रहा था। जन्मजात तकलीफ रही तो लड़की ही। शरीर शरीर का काम करता और समझदारी के हिस्से मानो शिकारी की प्रतीक्षा कर रहा कोई अबूझ कबूतर। एक दिन पप्पा का दिल उसकी चिंता का इतना भार झेल नहीं सका और धड़कना बंद हो गया। उसी ऐसे में तुम कहती हो ना, ऐसे मेरे लिए लाइन लगी। आंखों को एक दो झटके भी, पर दिमाग यह कहता था कि मैं चली जाऊं, और मम्मी अगर नहीं रही तब क्षमा का क्षमा। ओ फिर क्या? दिमाग ने मन की बात नहीं मानी और अपनी मनमानी की। और क्षमा तो आई थी अपने कुछ कर्म पूरे करने के लिए। उसके हृदय में एक देवदूत बैठा हुआ था। वह थोड़े ही ना उसे पृथ्वी पर ज्यादा समय रहने देगा। तो फिर आ वह गई, तब तक तो मेरी उम्र निकल चुकी। यदि खोजा होता तो कोई तो मिल ही जाता, पर तब मम्मी बालक को छोड़कर मम्मी कहीं जा सकती है भला? संबंध तो वही के वही है, मात्र रोल अदल बदल हो गए। मेरा दिल भावुक हो गया। अपने परिवार के लिए सारा जीवन समर्पित कर देने के बाद नीलू आंटी ने ऐसे सहज ढंग से कर दी थी, मानो अपनी मनपसंद चॉकलेट किसी और को खाने के लिए दे दी। मैं भी बिना कुछ बोले अहोभाव पूर्वक उनकी निरपेक्ष भाव से, बिना किसी शिकायत के अपनी जिंदगी की परतें खोलती हुई नीलू आंटी मेरे आदर के पर्वत की चोटी पर बैठ गई, एक सावनी बादल की भांति। उनके अस्तित्व का अर्थ क्या? बरसकर खाली होने के लिए। कुछ तक मैं उनका हाथ पकड़कर बैठी। उस दिन पीढ़ियों का फासला काटकर हम दोनों सखियां हो गई। उस सखी भाव के कारण ही मैंने कह दिया, एक सरस जिंदगी व्यर्थ हो गई। नहीं आंटी, नहीं नानी, नहीं अनु, एक सरस जिंदगी अच्छे से काम। 10 दिन बाद एक शाम अस्पताल से निकल ही रही थी कि आंटी का फोन आया। मम्मी बाथरूम में फिसल गई है, तू जल्दी आ जा। इस उम्र में व्यक्ति फिसल कर गिर जाए और हड्डी टूट जाए तो शायद ही ठीक हो सके। मैं सीधे वहां पहुंची। बायां पैर लटक गया था। मैंने कहा, है मेरे अस्पताल में ही ले चलते हैं, नजदीक भी है और मेरे रहते कुछ फर्क भी पड़ेगा। मैं पैर को थोड़ा सपोर्ट दे देती हूँ, पर यदि पैर सीधा रहे तो बेहतर। मीता आंटी को फोन करके गाड़ी मंगवा लो। मीता आंटी का ड्राइवर नहीं था, इसलिए गाड़ी को भेजा नहीं जा सका। नीलू आंटी ने कहा, वैसे तो मीता बहन ड्राइव कर लेती है,
और शायद किसी काम में व्यस्त होगी। उनकी ससुराल बड़ी बड़ी है, इसलिए आना जाना ज्यादा रहता है। टैक्सी बुला लेते हैं। मैंने फोन करके अस्पताल से बुला लिया। नानी माँ के पैर के 3 टुकड़े हो गए थे। जरूरी परिचर्या, सूचनाएं, दवाइयाँ लिखकर हम घर वापस लौट आए। ऑपरेशन तो हो सके ऐसा ही नहीं। 2 दिन के बाद भी उनको दर्द हो रहा था, ऐसी खबर मिलते ही मैं उनको देखने के लिए गई। अंदर के कमरे में कंप्यूटर कर रहे थे। मेरी आंखों में उभे हुए सवाल को पढ़कर नीलू आंटी ने कहा, मेरा मित्र और मेरी खास मित्र पौलोमी का पति हेमांत, कॉलेज में हम तीनों साथ। मम्मी के कारण मैंने 10 से 6 की फुल टाइम नौकरी छोड़ दी। उसके बाद हेमांत ने मुझे उसकी पार्टनर बनाया। हम कंपनियों के अकाउंट्स, जॉब वर्क आदि करते हैं। वैसे तो हमने ऑफिस ले रखा है और मम्मी को पहले मैं काम वाली बाइक के पास रखकर 2-3 घंटे चली जाती थी, पर अब तो 24 घंटों मम्मी का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मैंने सोचा कि इतनी सारी समस्याओं के चलते आंटी की कम आय और उद्यम जाएगा क्या? कोई बात नहीं, अब हेमांत मुझे घर बैठे काम देता। यह भी यदि अधूरा रह जाए तो वह खुद शाम को आकर आकर पूरा कर लेता है। सुबह ऑफिस जाते समय कॉलोनी सब दे जाती है। 3 दशक से दृढ़ इस मैत्री को मैं सम्मान के साथ सलाम कहती हूँ। तब नीलू आंटी ने कहा, नीता बहन को फोन करके खबर कर दी थी, पर तुम भी कहती जाना, रास्ते में उनका घर पड़ता है। नीता आंटी का पता लेकर मैं निकली। मैं उन्हें एक बार ही मिली। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि बेटी की शादी होते ही वो पराई हो जाती है, ऐसा कहा जाता है, पर क्या उसके लिए उसके माता पिता भी पराये हो जाते हैं? ससुराल बड़ा, इसका मतलब यह थोड़े ही है कि उसमें खोकर मम्मी को देखने के लिए जा सके, या फिर भावनाओं को भी पैसे का जंग लग जाता होगा। उनके घर जाकर मैंने नानी माँ की खबर सुनाई। उन्होंने कहा, हाँ नीलू का फोन आया था, पर मैं जा नहीं सकी। 2-3 दिन में हो आऊंगी। बाद में वह जरा बोली, वह हेमंत आता है ना वहाँ उसकी मदद के लिए, इसलिए मैं थोड़ा राहत अनुभव कर रही हूँ। मैं आश्चर्य से इस बेटी को, इस बड़ी बहन को सुनती रही। उन्होंने मुझे फिर सीधे पूछ ही लिया, अभी भी वहां था ना वो? मेरे उनको तो वह जरा भी सुहाता नहीं। फिर अपनी आवाज को कुछ धीमी करके एक और वेदक प्रश्न पूछा, रोज आता है ना? मुझे तो उसके पड़ोसी कह रहे थे। हम तो मना कर रहे थे, पर पप्पा ने घर नीलू के नाम कर दिया। हमें तो डर है कि कहीं वो घर हेमांगी हजम न कर ले। मेरी आंखों में उठे क्रोध के काजल की लकीरें मेरे चेहरे पर फैल जाए, उससे पहले मैं उनके बंगले की सीढ़ियां उतर गई। उस दिन मुझे सगे और प्रिय के बीच रखा फर्क समझ में आ गया। 2 दिन के बाद नीलू आंटी का फोन फिर से आया, अनु पता नहीं किस हक से मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, पर तुम प्लीज जरा आ जाना, मम्मी को असह्य पीड़ा हो रही। तब मैं हंसते पहुंचकर टीवी रूम में महाभारत देख रही थी। डायबिटीज, फ्रैक्चर और असह्य पीड़ा। मैं तुरंत पहुंच गई। मेरा डर सही था, गैंग्रीन हो गया। इस बार मैंने सीधे एम्बुलेंस ही बुला ली। हेमांत अंकल ने नानी माँ को बालक की भांति उठाकर अंदर सुलाया और हमारे साथ अस्पताल भी आए। जांचने के बाद डॉक्टर ने मुझे बाहर बुलाकर कहा, डॉक्टर अवनी, गैंग्रीन है उन्हें, पैर को घुटना पड़ेगा।
पर उनकी यह उम्र और यह शरीर शायद ऑपरेशन टेबल के ऊपर ही। मैं और पर मुझे नीलू आंटी को इस बात से वाकिफ तो करना ही पड़ा। आखिर निर्णय तो उनको ही लेना था। उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाने का निर्णय लिया। कुआं और खाई के बीच माँ को शायद कुछ और श्वास मिल जाए। नीता आंटी और कलकत्ता स्थित बड़े भैया को भी फोन पर सारी जानकारी दे दी गई। उसके बाद तो मैं हॉस्टल छोड़कर आंटी के घर ही रहने चली गई। कभी किसी समय नानी माँ को कुछ हो जाए तो आंटी अकेली क्या करेगी। मीता आंटी दोपहर में आ रही है या नहीं ऐसा मैं पूछती ही नहीं। मैं अस्पताल से सैंपल की दवाइयाँ लेके आती थी। ड्रेसिंग भी मैं ही करती थी। उस समय रूम में आ ही नहीं सकती थी, पर दरवाजे पर से झांक कर वापस लौट जाती थी। कहती, मुझसे अब मम्मी का दुख नहीं देखा जाता। एक दिन अंततः रात में ही नानी माँ दुख से मुक्त हो गई। सबको फोन पर उनके देह विलय की सूचना दे दी गई। बड़े भैया तो 3 दिन सिंगापुर गए हुए थे और भाभी के लिए अकेले आ पाना मुश्किल था। सवेरे मीता आंटी और अंकल, सगे संबंधी, पड़ोसी सब इकट्ठा हो गए। हेमांग अंकल को लक्षित कर परस्पर बोल इशारे, कान पर टकराती निंदा और कुहनियों को टकराते देख मेरा मन उत्सुक था। क्या यह सब नीलू आंटी की नजर से बाहर थोड़े ही होगा। करनी औपचारिकताओं को निपटाकर नानी माँ के जर्जर खंडरह रूपी देह को शव वाहिनी में रखा गया। साथ ही शव जैसी आंखें लिए बैठी आंटी और उनका हाथ थामे मैं भी। अग्निदाह देते समय भी आंटी अश्रु रहित ही थी, क्योंकि यह उनकी मम्मी की मौत थोड़ी थी। यह तो एक अभिशप्त आत्मा की अनंत दुखों से मुक्ति थी। आंखें तो मेरी ही खोरी हुई थी, क्योंकि मुझे तो इस मृत्यु में 2 मुक्तियां दिखाई दे रही थी। 3 दिन के बाद बड़े भैया भी आ गए। रात्रि वेला में परिवार के साथ सब लोग मिले तब अग्निदाह के बाद का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। नानी माँ की सारी चिंताएं और दुख का कारण नीलू आंटी थी, यह साबित किया गया और अभिमन्यु की भांति उनको टारगेट किया गया। मुझसे पहले बताना चाहिए था ना, तो मैं टूर कैंसिल कर देता। आपको फोन पर बताया तो था ना, तुम्हें बताना तो चाहिए था ना कि मम्मी इतनी सीरियस है। सीरियसनेस के थर्मोमीटर में कौन सा पारद डालकर डिग्री मापनी होती है। मेरे मन में सवाल पैदा हुआ। अरे तुम्हें तो क्या, मैं इतनी नजदीक हूँ फिर भी आखिर बार मिल नहीं सकी। कुछ बोलने के लिए मेरा मुंह शायद खुल गया, पर नीलू आंटी की आंखों ने मुझे रोक दिया। मम्मी तो जैसे तुम्हारे अकेले ही थी। एक और आक्षेप, तो क्या तुम्हारी थी? मुझे चिल्लाकर पूछना था, पर इस पारिवारिक चर्चा में मैं पराई थी और आंटी ने मेरा हाथ दबाए रखा था। एक के बाद एक तीर छूटने लगे थे और यह अर्धशतक भीष्म पितामह की भांति वे सारे तीर अपने ऊपर ले जाते थे। उसने शादी नहीं की थी, क्या यह उसका कसूर था? उसका एक अच्छा भला मददगार पुरुष मित्र था, यही उसका अपराध था। वह उन्नत मस्तका खुददारी से अपने बल पर जी रही थी, इसका दोष था। अविवाहिता पर हर उम्र में समाज को नजर रखने का हक है ही। मुझे पेट में अकुलाहट हो रही थी और उल्टी हो जाएगी ऐसा लगा। इंसानों से भी घृणा होती होगी कभी। मैं खड़ी होकर अंदर चल गई।
दूसरे ही दिन मैं हॉस्टल में रहने के लिए चली गई। घर में सब लोग हो तब तक तो वहां जाना ही नहीं है, ऐसे निश्चय के साथ। दूसरे सप्ताह मम्मा का फोन आया, सुन, आईआईएम में पढ़ रहे बेंगलोर वाले लड़के की मम्मी ने बात भेजी है। मैंने ज्यादा सुने बिना ही कह दिया, उन लोगों को यदि इस रविवार को अनुकूलता हो तो पूछ लेना, मैं शनिवार रात तक पहुंच जाऊंगी। एक क्या एतराज है? मैंने क्या बोल दिया, मेरे कान नहीं कर रही थी। मम्मा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ होगा, क्योंकि थोड़ी देर तक तो वह कुछ बोली ही नहीं। मैंने इतनी आसानी से हाँ कैसे बोल दी? वह मुझे और कुछ पूछे उससे पहले मैंने फोन रख दिया था। मैं मम्मा से कैसे कहती कि बाण शैया पर लेटने मैं तैयार हूँ। यह थी मेरी कहानी बाण शैया। आशा है आप सबको ये पसंद आई होगी। मैं लघु कथाएं भी लिखती हूँ। लघु कथा आप सबको मालूम होगा ही, एक स्वरूप है, बहुत छोटे में कहानी बताई जाती है, ओनली इन 300 to 400 वर्ड्स। और इसमें ऐसा नहीं कि ये नवली का स्वरूप है, यह स्वरूप है जिसमें संवेदना बहुत होती। लघु कथा के जनक श्री मोहन भाई पटेल ऐसा कहते हैं कि एक घटना की एक क्षण जो चित्त को विक्षुब्ध कर दे, वो ही क्षण को पकड़कर लघु कथा लिखी जाती है। लेकिन वो क्षण ऐसी होती है जो हमेशा के लिए याद रहती है, चित्त को बेचैन विक्षुब्ध कर जाती है और संवेदना से भरी हुई होती है। मुझे ये भी कहने में खुशी होती है कि लघु कथा के लिए मेरी लघु कथा की किताबें भी प्रकाशित हुई है। 2018 से 21 तक 9 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उसमें नवलिका संग्रह भी है, लघु कथा संग्रह है, नवल कथा है, व्यक्ति चरित्र है और 3 पुस्तकें प्रकाश्य है। तो आज मैं इस मंच से अपनी और 2 लघु कथाएं भी पढ़ना चाहूंगी। लघु कथा शुरू करूं इससे पहले मुझे बोलना है कि इस इतने अच्छे मंच में मुझे के लिए मैं आयोजकों का, खास करके राजुल बेन और कौशिक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और साथ ही में ये मंच जिसने स्थापित किया है वो सब, और जो भी आयोजन से जुड़े हुए हैं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी लघु कथा पहली लघु कथा है, रेले, बहुत छोटी है। आशा है आप सबको पसंद आएगी। आज रघु बहुत चिंतित था। रेवती ने, शीर्षक है रेले। आज रघु बहुत चिंतित था। रेवती ने उसे कई बार कहा, बस ऐसे ही आप सेठ की चिंता करते रहोगे तो बुखार बढ़ जाएगा। अभी कुछ ही देर पहले नींद में भी आप कुछ बोले जा रहे थे। इतने तेज बुखार में भी रघु की नींद आकर उड़ जाती। जैसे ही आंख खुलती कि वह तुरंत कहने लगता, सेठ के घर उनके मित्रों की बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। सेठानी जी तो उनके कमरे से बाहर निकलेगी ही नहीं। मैं नहीं जाऊंगा तो कौन करेगा? रसोई पकाना और परोसने का काम तो महाराज संभाल लेंगे, कुक संभाल लेगा। पर उसका सेठ बहुत गर्म मिजाज है, यदि उनका मिजाज बिगड़ा तो मेरी नौकरी। अंततः ऐसा तय हुआ कि रात को रघु के बदले सेठ
उसका 12 वर्षीय दिनेश सारा काम करने के लिए चले गए। प्रभु ने धीरे धीरे दिनेश को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कैसे फलीदाने, काजू, चिप्स आदि सजाने हैं, बोतल कैसे, बर्फ के कितने टुकड़े डालने हैं आदि। शाम तक तो दिनेश जाने के लिए तैयार हो गया। देर रात जब दिनेश घर लौटा तब रेवती जग गई। बेटे के लाल हुए गाल को देखकर उसने पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ भी तो नहीं है ना? सेठ जी की महंगी शराब मुझसे थोड़ी सी गिर गई तो? अरे माँ, लाल शराब गिरकर बहेगी तो उसका लाल रंग के रेले कहीं तो उतरेंगे ना, मेरे गाल से उतरे। इसमें क्या, तो चलता रहता है। जाओ उठाकर सो जाओ। दिनेश की आवाज सुनकर रेवती को लगा कि ये रेले गाल के साथ दिनेश के गले में भी ये थी रेले वगैरह। मेरा टाइम खत्म हो जाए इससे पहले एक और लघु कथा सुनाने का लोभ नहीं जाने दे सकती। यह लघु कथा स्त्रीयार्थ में प्रकाशित हुई थी। शीर्षक है धक्का। छोटी सी है। मुझे जब पता चला तब बहुत देर हो गई। बात लगभग बेकाबू होती जा रही थी, पर उसमें कोई आश्चर्य नहीं। ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा होता है। घर के लोगों को बहुत बाद में खबर होती है। मेरी बिटिया डॉक्टर है। बड़े अस्पताल में नौकरी पर कभी भी इमरजेंसी में जाना होता है। आने में भी देर हो जाती है। कभी कभी तो 2-3 ड्यूटीज एक साथ आ जाए तो 2-3 दिन तक घर भी नहीं आ पाते। इसलिए उसके आने जाने के वक्त को लेकर चिंता करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं। एक दिन अचानक यूं ही किसी के द्वारा घटस्फोट हुआ था कि उसके साथ काम कर रहे एक डॉक्टर मित्र से वह प्रेम करती थी। कभी कभी तो उसके साथ उसके अस्पताल के क्वार्टर में रुकती थी। मेरी बेटी विपा ने मुझे कभी भी उसके लिए लड़के देखने या मेरे द्वारा पसंद किए गए लड़कों से मिलने से मना ही नहीं किया था। इसलिए मुझे आश्चर्य तो हो रहा था कि यह संबंध कैसे हो सकता है। एक उम्र को प्राप्त लड़की जैसा व्यवहार ऐसा ही सहज स्वाभाविक होता है। मेरे एकाकी जीवन में उसके अतिरिक्त और कोई था भी नहीं। इसलिए इस आघात, इस धक्के को बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आघात उसके संबंधों का तो था ही, पर मेरे लिए उससे ज्यादा आघात विश्वासघात का था। मेरे मन से तो हम माँ बेटी से ज्यादा सखियां थी, और ऐसी बात को उसने मुझसे छुपाया। विवाहित पुरुष से संबंध जुड़े रहने से उसके भविष्य का क्या? हमेशा माथे पर लटकती रहती तलवार और सॉर्ड या कैप्ट का चीरकालीन लेबल। उस दिन विपा के घर आने से पूर्व तो मैंने निर्णय कर ही लिया। उससे पहले मैंने उस डॉक्टर के बारे में कुछ जांच पड़ताल भी करवा ली थी। विपा घर लौटी। नित्य उसने खाना खाकर टीवी चालू की।
तब मैंने उसके हाथ में से रिमोट लेकर टीवी बंद किया और कहा, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। वह मेरी ओर कुछ देर देखती रही, पर उसने भी कभी तो इस स्थिति की धारणा बनाई नहीं, इसलिए उसे मेरे वर्तन को लेकर आश्चर्य अनुभव नहीं किया। मैंने दीपा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा, आज मुझे तुम्हारे समक्ष एक इकरार करना। अब की बात बहुत गौर से सुनना और खास करके अंत, लघु कथा में जो अंत होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा ट्विस्ट हो जाता है, कभी कभी कथाई बदल जाती है। मैंने दीपा से कहा, आज मुझे तुम्हारे समक्ष इकरार, मैं जिंदगी भर तुम्हारे पास झूठ बोलती रही हूँ कि तुम जब छोटी थी तब तुम्हारे पिता का देहावसान। सच में ऐसा नहीं है, तुम्हारे पिता अभी भी जीवित हैं। हमारी शादी के 2 वर्ष बाद, तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद, वे उनके साथ काम कर रही एक लड़की से प्रेम करके मुझसे अलग हो गए और फिर विदेश में बस गए। अब सदमा बर्दाश्त करने की बारी उसकी थी। मैंने तो उसे उसके पिता रहित शैशव, आर्थिक मानसिक परेशानी और हमारा सविशेष तो मेरे द्वारा किए गए संघर्ष की याद दिलाई। मैं एक त्याग की हुई पत्नी, उसका संघर्ष कैसा था उसकी मैंने याद दिलाई और पूछा, तुम तुम्हारे डॉक्टर मित्र के पुत्र और उसकी पत्नी को ऐसा जीवन देना चाहती हो जो हमने सहा है? तुमने जो कुछ सहा, क्या एक छोटा सा बच्चा और उसकी माँ उन किसी कसूर के सहे, ऐसा तुम चाहती हो? दीपा की आंख से बह रहे चहुदार आंसुओं ने उत्तर दे दिया। मुझे जरा अफसोस भी हुआ, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। अब गौर से सुनना, संतानों की भलाई के लिए कभी कभी माँ को झूठ बोलना पड़ता है। यह तो अच्छा ही था, कभी भी घर में उसके पिता नयन की माला चढ़ाई हुई तस्वीर टांगी ही नहीं। आशा है आपको 2 लघु कथा और मेरी कहानी पसंद आई होगी। मैं फिर से संस्थापक, तुलसी खुसरो साहित्य संगम मंच के संस्थापक श्री शरदकांत मिश्र जी, डायरेक्टर श्री बलराम सरस जी, डायरेक्टर सोनिया जी, मुख्य संरक्षक डॉक्टर सतीन देसाई, संरक्षक तौकीर जी और संरक्षक कौशिक भाई शाह और राजुल बहन की बहुत बहुत आभारी हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे यह मौका मिला, इतने अच्छे ऑडियंस के सामने का यह सुनहरा अवसर मिला और मुझे बहुत खुशी है। आप सबको भी कहानियाँ अच्छी लगी होगी और मिलते रहेंगे भविष्य में भी। फिर से आदरपूर्वक सबको नमस्कार और इस मंच के मुखपृष्ठ पर दिए हुए 2 आदरणीय महानुभावों को भी फिर से नमस्कार करती हूँ, तुलसी जी और आमिर खुसरो जी। वो हमारे साहित्य में, सांस्कृतिक विरासत में हमेशा हमारे साथ है और रहेंगे।